नेशनल अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु मेडल, कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, मेजर जनरल अशीम कोहली, सेना मेडल एंड बार, रिटायर्ड सीईओ, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, भारतीय एटीएस स्कूल और एनसीसी के बच्चों का इस भव्य ध्वज उद्घाटन समारोह में मैं आप सभी को ब्रिगेडियर राहुल गुप्ता, कमांडर 108 माउंटेन ब्रिगेड की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं माननीय मुख्य अधिकारी महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि आप राष्ट्रीय ध्वजारोहण करके आज के समारोह का शुभारंभ करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज के ऊपर जाते समय अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी गार्ड कमांडर के आदेश अनुसार सैल्यूट करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आज के इस शुभ अवसर पर चंद शब्द कहकर हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी। Good evening, ladies and gentlemen. At the outset, on behalf of all personnel and the families of the Andaman Nicobar Command, let me pay our deepest gratitude to Mr. Naveen Jindal, who is the founding member and the chairman of Flag Foundation of India. You all have been inspired through various movies of the way the flags, the right to fly your flag at your place of residence in any of the Hollywood movies. But to take that truly inspirational, with the efforts put in by his own individual capacity
the time that he spared and the financial commitment that he has done to this. And it's something that is very close to his heart, and he had committed, despite his busy schedule, to be with us this evening. However, unfortunately, he was not able to make it. And I'm sure the CEO of this foundation, Major Ashim Kohli, who is with us today, will carry our deepest feelings and sense of gratitude back to him. I also want to express our heartfelt gratitude to you, sir, for having not only spared your time and being with us this evening, but also for his personal effort in ensuring that this occasion. His personal involvement was instrumental in taking this project to this final stage as it is there in front of you. The idea germinated in the mind of Brigadier Rahul Gupta, Commander 108 Brigade, and he personally took it up as in a mission mode project, and not only coordinated at every step, but also channelized the resources, put a team in place at every location which is required, right from its transportation, fabrication of stand for bringing it here, and the entire equipment only arrived here a few days back to create this particular monumental structure and ensuring its installation in the last 3 days or so. With the tremendous work done, well done, Rahul. And all the personnel of 108 Brigade have been actively involved in this particular event. They've been practicing, and I'm sure that the events to unfold after this will be of equal magnitude. It will epitomize the entire spirit and the ethos of the national flag. No better day that can be chosen to have this event. On the occasion of the Armed Forces Flag Day, we are unfolding this flag. And this has been an event which, like I mentioned at the beginning, started by Mr. Naveen Jindal, but now it's been accepted and for practice by across the party lines. We have had the Honorable Prime Minister launching the Har Ghar Tiranga as a mission, and that has now become a norm on every occasion, be it Independence Day or Republic Day. We also have a number of state governments which have now taken up this similar project. I remember in 75 years of independence, the Delhi government itself installing 75 flags of almost similar magnitude. This flag will not only inspire the children who file past this, whether it is to the way to the school or in leisure time. This will also epitomize the spirit of unity and diversity for which the flag stands for, and also symbolizes the spirit of this command of jointness and integration, and live up to the motto of Shanti Shakti. I wish each and every one of you all the best and Jai Hind. Thank you. आज के समारोह के शुभ अवसर पर हम सभी के उत्साहवर्धन हेतु 2 शब्द कहें। आदरणीय मेजर जनरल अशीम कोहली जी। Jai Hind and very good evening. Respected Commander-in-Chief, Andaman Nicobar Command, Air Marshal Balakrishnan, Commander 108 Brigade, Brigadier Rahul Gupta, all officers, ladies, GST जवान and equivalent of 3 services, families, बच्चे और जितने मीडिया कर्मी प्रेस से आए हुए हैं, मीडिया से आए हैं, सबसे पहले आपको आर्म फोर्सेस फ्लैग डे की और आज इस ओकेजन पर इस झंडे के इनॉग्रेशन की मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। ये जो प्रोजेक्ट झंडा यहाँ लगाने का है, जैसा कि अभी सिंचन ने काफी चीजें इस बारे में बताई, आप सब जानते हैं कि फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो मिस्टर नवीन जिंदल ने स्टार्ट की थी, उसका मकसद एक था। आप सबको आज मैं इस ओकेजन पर कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो आपको नहीं मालूम होंगी बहुत लोगों को, और मैं चाहता हूं आज इस ओकेजन पर इस एक सेरेमोनियल फंक्शन के अलावा आप कुछ ऐसी चीजें यहाँ से जानकर जाएं जिसके बारे में हो सकता है आपको ना मालूम हो, और मुझे यकीन है मैं पूरी इंडिया में जाता हूं 80 to 90% लोग झंडे के बारे में, कुछ चीजों के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होते, और इस कारण बहुत लोग झंडा लगाते नहीं है। मैंने बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर्स जो सिविल में हैं उनसे जब पूछा आपने झंडा अपने घर पे लगाया है, तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला क्यों नहीं? तो बोलते हैं कि इसके साथ कई रूल जुड़े होते हैं, हमें लगता है कि हम किसी चीज में फंस ना जाए। मुझे बड़ी हैरानी होती है और दुख भी होता है, तो मैंने सोचा इस ओकेजन पे आप सबको कुछ चंद बातों से मैं अवगत कराऊं। पहली बात, आप शायद जानते होंगे कि आजादी के 57 साल तक हमें एक आम नागरिक को यह हक नहीं था कि आप अपने घर या ऑफिस पे 365 दिन झंडा लगा सके। इसके लिए मिस्टर नवीन जिंदल ने तकरीबन 10 साल की एक कानूनी लड़ाई लड़ी, और अंत में 23 जनवरी 2004 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया
कि अपने घर या ऑफिस में 365 दिन सम्मानपूर्वक झंडा लगाना हर एक भारतीय नागरिक का ये एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद ये अधिकार तो मिल गया, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हुई। कुछ कारण थे, उन कारणों से इस समय मैं समय के अभाव कारण नहीं जाऊंगा, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। तो ये अधिकार मिलने के बाद भी जब लोगों ने इसे पूर्णतया उसका अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, तो साथ साथ में एक फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना हुई। उसके साथ में फ्लैग फाउंडेशन ने ये एक अपना विजन रखा कि हम झंडे को और झंडे के रूल्स के बारे में जनता को अवगत कराएंगे और झंडे का रिस्पेक्ट के साथ में डिस्प्ले 365 दिन इसके लिए लोगों को एनकरेज करेंगे। और उसके साथ ही सिलसिला शुरू हुआ 2009 से मॉन्यूमेंटल फ्लैग लगाने का पब्लिक एरियाज के अंदर। अभी उसके बाद में लगातार हम सोशल मीडिया के द्वारा बाकी मीन से कुछ रूल्स के बारे में लोगों को बताते हैं, और हमें बड़ी खुशी हुई जब लास्ट ईयर उसमें हमारा क्या रोल था मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई जब हम ये फैसला किया गया कि 75 साल जो आज़ादी के हैं उसको मनाने के लिए हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जाएगा। तो लेकिन उसमें मुझे फिर हैरानी हुई कि लोगों ने 15 अगस्त के बाद झंडा उतार लिया। जब पूछा क्यों उतार लिया, तो बहुत एजुकेटेड लोगों ने भी ये बात बोली कि गवर्नमेंट ने तो बोला था 13 से 15 तक झंडा लगाना है, तो इसलिए लोग हमने झंडा उतार लिया उसको। अभी हम अगले 26 जनवरी को 15 अगस्त को लगाएंगे। तो मैं कुछ रूल्स झंडे से जुड़े हैं जो मैं चाहता हूं आप इसे ध्यान से सुने। खुद एजुकेटेड हूं, अगर आपको ये बात नहीं मालूम थे, और इसे सभी फैलाएं, सभी जगह सबके साथ शेयर करें। और आर्म फोर्सेस अगर इस चीज को कॉन्फिडेंटली सबको बताती है और इसको अपनाती है, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा एक और अच्छे अभियान का आर्म फोर्सेस के द्वारा। पहला रूल जो मैंने बताया, 365 दिन आप झंडा लगा सकते हैं। दूसरा, क्या रात को आपको झंडा उतार देना चाहिए? जवाब है नहीं। गवर्नमेंट भी बोलती है जहां तक संभव हो सूर्य उदय से सूर्यास्त तक झंडा लगाएं, लेकिन ये प्रोविजन के बारे में भी लाइन इसमें काट दी गई पिछले साल हर घर झंडा के अभियान के टाइम पे। तो रात को भी आप झंडा लगा सकते हैं। हाँ, अगर पब्लिक प्लेस पे लगा हुआ है तो उस पर रोशनी का इंतजाम हो, क्योंकि उसकी हाइट के कारण कुछ चीजें साथ में जुड़ी होती हैं। तीसरा सवाल, क्या झंडा सिर्फ कॉटन, खादी या सिल्क का बनाना चाहिए? इसके बारे में पिछले 15 अगस्त से पहले आंसर था यस। पिछले 15 अगस्त को गवर्नमेंट ने ये इसमें ऐड कर दिया कि आप पॉलिएस्टर का झंडा भी लगा सकते हैं। अगली बात, क्या झंडे के जो कलर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर धर्म के साथ जुड़े हुए हैं? जवाब है नहीं। अगला सवाल, क्या झंडा आपका जब खराब हो जाता है तो उसे झंडे को क्या करना चाहिए? इसके बारे में भी ऐसे कि मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बोलता है कि जब झंडा खराब हो जाए, कट फट जाए या मैला हो जाए, तो उसे सम्मानपूर्वक जला के या किसी अन्य सम्मानित ढंग से पूर्णतया इसे नष्ट कर देना चाहिए। ध्यान दीजिए, और एकांत में यह कार्य करना चाहिए, पब्लिकली नहीं करना चाहिए। इसकी कोई फोटो या वीडियो इसका ना बनाए। झंडा क्या आप अपने वस्त्रों पर लगा सकते हैं? अगेन 2004 में मिस्टर जनरल जब एमपी थे वो पार्लियामेंट गए तो उन्हें रोका गया, उन्होंने झंडा लगाया हुआ था। तो उस समय तक उन्हें बताया गया कि रूल के खिलाफ है। उस समय तक एक एक्ट है, इसका एक्ट का नाम शायद किसी ने सुना हो, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। उसके तहत आप इसको अपने वस्त्रों पर नहीं लगा सकते थे। तब उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया कि सर्वसम्मति से पास किया गया, और उसके बाद दिसंबर 2005 में एक अमेंडमेंट के द्वारा इस एक्ट में यह अधिकार दिया गया कि आप कमर से ऊपर सम्मानित ढंग से झंडे को लगा सकते हैं। जैसे आपने देख रहे होंगे, अगर दिखता है तो लेपल पेन लगाया हुआ है, रिस्ट बैंड। आप देखते हैं हमारे इंडियन प्लेयर्स जो होते हैं क्रिकेट में हेलमेट पे झंडा लगाते हैं। तो यह अधिकार भी एक आम नागरिक को मिला। तो मैं चाहता हूं इस ओकेजन पे एक यादगार के तौर पे आप ये जानकारी लेकर जाएं, खुद भी कॉन्फिडेंट हो। और हम एक टैगलाइन हमने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया में शुरू किया है, हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा। मैं भी अपने घर में 365 दिन झंडा लगा के रखता हूं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब बड़ी शान से, कॉन्फिडेंटली और सम्मान के साथ 365 दिन अपने घर या ऑफिस में झंडा लगाएं। अंत में मैं कमांडर 108 ब्रिगेड राहुल गुप्ता, उनकी टीम और खासकर लेफ्टिनेंट अंशुल बहल जो मेरे एक्चुअली में वो मेरे पीछे पड़े रहे थे इस प्रोजेक्ट को पुश कराने में अर्लियर, और कंप्लीट टीम जिन्होंने, मैंने कल रात को भी यहाँ देखा बहुत लोग काम कर रहे थे, सबको आप सबको एक बार धन्यवाद भी बोलना चाहता हूँ कि आपने इतनी इज्जत से झंडे को लगाया। और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि देश की सेवा में आप लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे यूनिफॉर्म में, चाहे आप फैमिली या बच्चे जो भी काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं और एक ऐसा मजबूत देश बनाएं जो सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अभी मैं सभी अतिथिगणों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें और इस
Vande Mataram, Vande Mataram,
सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज है आपके साथ।